Hello everyone. So we are going to continue with our exercise 4.3. Let me share its objective. After watching today's video, you will be able to relate linear equations in two variables to real life situations. Let's start question number 8. In the countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. तो हमें equation दी हुई linear f is equal to 9/5c plus 32. Draw the graph of the linear equation using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. बेटा हमें इसमें equation दी हुई है f is equal to 9/5c plus 32. Now we have to plot a graph between the Celsius scale and Fahrenheit scale. तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले हमें इससे सोल्यूशंस निकालना है। तो इसमें ध्यान रखना कि हमें c की वैल्यूज पुट करके f निकालना है। तो जब c की वैल्यूज आप ऐसे सब्स्टिट्यूट करना कि जिससे डिनोमिनेटर इसका 9/5 का कट कर जाए। जैसे अगर मैं c 0 लूँ तो कोई इश्यूज नहीं है ना, तो f क्या बन जाएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो 9/5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 32। 0 प्लस 32 विल बी 32। अगर हम फर्स्ट केस में मैंने c को 0 लिया, लेट्स टेक c इज इक्वल टू 5। इफ c इज 5 देन f विल बी 9/5 इंटू 5 प्लस 32। 5 and 5 are cancelled, 9 plus 32 which is equal to 41. Now let's take if c is equal to -5, then f will be 9/5 into -5 plus 32. 5 and 5 are cancelled, we get -9 plus 32. 32 में से -9 के तो कितना आ गया 23। तो हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। लेट्स मेक इट स्टेबल। Now c and f. If c is 0, first case, f is 32. If c is 5, f is 41. If c is -5, f is 23. Now we have completed the table. Next step is to plot its graph. Now let's plot the graph of the points. Our first point is x is 0 and y is 32. So 0 and 32. So this point will lie on the y-axis. So our first point is 0 and 32. Next point is when x is 5. बेटा यहाँ पे x क्या है सेल्सियस स्केल एंड y क्या है फारेनहाइट स्केल। ये मेंशन्ड है वहाँ पे भी सेल्सियस स्केल को आपने x एक्सिस पे लेना, फारेनहाइट स्केल को y एक्सिस पे। ओके, सो दिस इज आवर 5 and 41 second point, and third point is -5 and 23. Okay, now let's label these points. Our first point was 0 and 32. So we have labeled it. Now moving on to the second, it was 5 and 41. Now the third one, -5 and 23. So we have plotted all the 3 points. Our next step will be to join them via line. So this is our graph of the given equation. Now as we have plotted the graph, उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। उसका सेकंड पार्ट का है कि if the temperature is 30 degree Celsius,
व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। हमें सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दिया है। वी हैव टू फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो क्या बन जाएगा 9/5 इंटू 30, सी की जगह 30 पुट कर दिया, प्लस 32, कटिंग होगी 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, now multiply 9 6 ज़ा 54, 54 प्लस 32, now add it, क्या आ गया 9 6 ज़ा 54 प्लस 32, कितना आ गया हमारे पास 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें सी की वैल्यू दी थी, हमें एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। दिस वाज आवर पार्ट नंबर 2। नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट 3। थर्ड पार्ट इज इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, बेटा एफ की वैल्यू दी है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, फाइंड द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। तो आप इसी इक्वेशन में फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ को लिखेंगे 95 is equal to 9/5c plus 32. Now simplify it. 9/5c is equal to 95 minus 32. तो 95 में से 32 माइनस किए क्या आ गया 63। तो 9/5c is equal to 63, c आ गया 63 इंटू 5/9। तो कटिंग हो जाएगी 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, तो 7 5 ज़ा 35 डिग्री सेल्सियस। So when F is 95 degree Celsius, our C comes out to be 35 degree Celsius. Now moving on to the third part. Third part is if the temperature is 0 degree Celsius. Sorry, fourth part करेंगे ना. If the temperature is 0 degree Celsius, then what is it in Fahrenheit? And if temperature is 0 degree Fahrenheit, then what is it in सेल्सियस स्केल। हमें दो चीज़ें दी हुई हैं फोर्थ पार्ट में। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। बट उन्होंने कहा है कि टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर c 0 डिग्री सेल्सियस है देन व्हाट विल बी f। व्हाट वी हैव टू डू, वी विल सब्स्टिट्यूट 0 हियर इन प्लेस ऑफ c। 9/5 इंटू c प्लस 32, सो f इज 0 प्लस 32 इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर हमारे पास सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर 0 डिग्री है तो वो फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। और इसी के सेकेंड पार्ट में कहा गया है इफ एफ इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर एफ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो अब क्या करेंगे, एफ की जगह 0 पुट कर दिया, क्या बन गया 9/0 इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। तो 9/5c इज इक्वल टू माइनस 32। तो हमारे पास c आ गया माइनस 32 इंटू 5/9। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी आ जाएगी माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पार्ट, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। बेटा हमें पूछा गया है कोई ऐसा टेम्परेचर है न्यूमेरिकली जिसमें f और c की वैल्यू हमारी सेम हो। जैसे हमें दिया गया ना f इज इक्वल टू 9/5c इज प्लस 32। हमें बताना है किस टेम्परेचर पे, किस न्यूमेरिकल वैल्यू पे रादर f और c की वैल्यू सेम होती है। लेट f इज इक्वल टू c इज इक्वल टू x, दोनों की वैल्यू हम मान लेते हैं इक्वल वैल्यू x है। तो क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 9/5x plus 32. Now simplifying it, x minus 9/5x is equal to 32. Taking 5 as LCM, क्या बन जाएगा 5x minus 9x is 32. It will give you minus 4x upon 5 is equal to 32. So x comes out to be minus 32 into 5/4. x की वैल्यू आ गई minus 40. It means numerically at a minus 40 degree is the value at which f and c are same, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, yes at minus 40 degree, ठीक है, they are same। Is it clear? तो minus 40 डिग्री पे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल एंड टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज numerically equal।